Good morning, class. How are you all? Hope you are doing well. Welcome. And today we are going to start with our new chapter, that is chapter number 3, Fiber to Fabric. See, children, you all are coming in school dress every day to the school, and sometimes you might get bored also. Some function is there in the school, and if it is announced that you can come in your free dress, then you will all be happy. Why you all be happy? Because everyone will get the choice to wear the clothes of their color, of their pattern, of their quality, right? Now, talking about the quality of the clothes, have you ever thought how many types of qualities of clothes are there? Not about modern or ancient. I am talking about the feel of the cloth, right? If suppose your birthday is there or some function, say Janmashtami, Mela, so you go to Mela wearing new clothes. Someone buy also new clothes. So when you buy new clothes, what are the things you look? I think you will all look into the रोल मॉडल्स ऑफ योर सीरियल और फिल्म एक्टर्स के, उसने उस फिल्म में ऐसा पहना था तो ऐसा ही मिल रहा है तो मैं लेता हूँ, राइट? योर फेवरेट क्रिश और सुपरमैन और वॉट एवर, स्पाइडरमैन का ड्रेस आता है, राइट? सो यू परचेज अकॉर्डिंग टू योर विश, बट योर विश कम्स ऑन विच फैक्टर कि हाँ ये अच्छा है, राइट? So when you touch the cloth, you feel कि हाँ this one is good. So have you ever wondered how these clothes are made? ये कपड़े कैसे बनते हैं? See, you must have gone to the hotel to eat the rotis. So with the same flour, oil and all that, you can make paratha also, you can make roti also, and you can make puri also, you can make tandoori also. So नाम सबका रोटी है, राइट? लेकिन सब में अलग अलग है कुछ ना कुछ. उसी तरह जब आप बोलते हो कि कपड़े, तो कपड़े कपड़े होते हैं लेकिन सब अलग अलग होते हैं. क्या होते हैं कि देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ क्लोथ्स लाइक सिल्क, कॉटन, जूट, नायलॉन, राइट? ये सब अलग अलग कपड़ों के प्रकार होते हैं. अब ये कपड़े बनते कैसे हैं, दैट इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट. सो व्हेन वी टॉक अबाउट द, जैसे मैंने बोला ना कि भाई तंदूरी बोलो या पराठा बोलो, तो जब आप उसमें देखोगे उसमें है क्या, तो उसमें तो होगा आटा, है ना? फिर आटे के अंदर 2-3 चीज़ें मिक्स की जाएगी, तब वो पराठा कहलाएगा, वो नान कहलाएगा, रोटी कहलाएगा, राइट? उसी तरह जो कपड़े होते हैं हमारे, राइट, वो एक सिंगल यार्न, धागा जो होता है ना, हम लोग पतंग उड़ाते हैं वैसा एक धागा कैसा होता है. तो हाउ क्लोथ्स आर वोवन, दैट इज़ अलग अलग. सी, आई विल गिव यू एन एग्जाम्पल. Do you see this? Yes, this is the same bandage that we use when you are injured somewhere, right? It is used in the hospital as a first aid, right? So this is made up of cotton. And how, see, it is made. दिख रहा है, right? And it is made from this cotton ball. तो इस कॉटन में से ये कैसे बना, राइट? एंड द सेम थिंग इफ आई शो यू हैंकी, दिस इज ऑल्सो मेड अप ऑफ दिस. सो हाउ इट इज मेड? फर्स्ट ऑफ ऑल, द सिंगल थ्रेड that is known as yarn, है ना? yarn जो सिंगल थ्रेड होता है,
You must have seen your old previous years bed. खाट बोलते हैं ना जिसको, खाट जो गांव में ज़्यादा यूज़ करते हैं, रस्सी लपेटते हैं चारपाई के ऊपर। चारपाई होती है ना लकड़े की, चौरस रेक्टेंगल, उसके ऊपर रस्सी लपेटते जाते हैं, इंटरवोवन करते जाते हैं और एक पूरा बेड बन जाता है ना। सेम थिंग, जो सिंगल थ्रेड होता है, राइट, फर्स्ट दे आर अरेंज्ड इन वर्टिकल, then horizontal threads are woven like upside down, then alternate pattern, again alternate pattern, and when they are tight it becomes like this. See, these are the threads, these are also threads. When they are mixed together it is interlocked, woven. See, right? So this is known as single yarn. तो ये सिंगल यार्न जो है वो कैसे आता है? कॉटन जो होता है, दिस कॉटन, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस कॉटन, ये कॉटन जो होता है, सी क्लोथ्स वॉट एवर यू आर वेयरिंग, इट इज़ ऑफ टू टाइप्स, वन इज़ नेचुरल, अनदर वन इज़ आर्टिफिशियल और सिंथेटिक. नेचुरल मीन्स जूट, कॉटन, सिल्क, राइट. ये जो नेचर में होते हैं, प्लांट्स में उगते हैं या एनिमल्स में, वुल, wool you get it from animals, silk you get it from cocoon, that is also an animal product, worm, jute and cotton ये plant product है. So clothes are natural, synthetic, again natural, it is of two origin, from plants and from animals, and one is synthetic or artificial, that is you make out of प्लास्टिक और टेरलिन और वट एवर मटेरियल्स इज़ देयर, राइट. तो उसके भी धागे बनाए जाते हैं और उसको इंटरवोवन किया जाता है, मिक्स किया जाता है. द क्लोथ्स विच इज़ suitable for our human wearing, that is silk is also natural जो होते हैं ना, वो हमारी बॉडी को सूट करते हैं. कॉटन जो होता है, सो व्हेन वी स्वेट, जब हमको पसीना आता है तो वो सोख लेता है. अंडरस्टूड. सो ऐसे कपड़े जो होते हैं वो हमारी बॉडी को नुकसान नहीं पहुंचाते, राइट. सो वी वेयर दैट काइंड ऑफ क्लोथ्स विच इज़ सूटेबल टू अवर स्किन. सो नेचुरल लाइक वुल, अभी सर्दियों में कैसे आप स्वेटर पहनते हो, तो वुल भी आपको कहाँ मिलेगा? शिप के ऊपर या कैमल के ऊपर, इसी फॉर्म में मिलेगा. फिर उसके धागे बनाए जाते हैं, यार्न बनाया जाता है, राइट. और जब वो यार्न बन जाएगा फिर उसको इंटरलॉक्ड किया जाएगा, तो जितना लंबा चाहे उतना कपड़ा बन सकता है. फिर उस कपड़े में से आप शर्ट बना सकते हो, पैंट बना सकते हो, टाई बना सकते हो, रुमाल बना सकते हो, राइट. एंड ब्लेज़र, कोटी, जब्बा, कुर्ता, वट एवर थिंग, साड़ी, वट एवर यू वॉन्ट, यू कैन मेक आउट ऑफ दैट क्लोथ. सो दैट इज़ द बेसिक ऑफ दिस चैप्टर, फ्रॉम फाइबर टू फैब्रिक. So here there is two characters, that is Buzo and Paheli. They got some money and they wanted to buy some clothes for their father or mother, parents. तो जब वो दुकान में जाते हैं ख़रीदने तो वो कंफ्यूज्ड होता है. दुकान वाले बहुत सारे कपड़े बताता है, राइट. सिल्क बताता है, कॉटन बताता है, नायलॉन बताता है. तो हाउ क्लोथ्स आर आइडेंटिफाइड? So varieties in fabrics, right. To find out what is fabric, अगर आपके घर के आजू बाजू में कोई टेलर की शॉप हो, है ना, तो टेलर क्या करता है, हमारा नाप लेता है, फिर कटिंग करके, स्टिचिंग करके हमको हमारा शर्ट या टी शर्ट या जो भी होता है ना, स्कूल यूनिफॉर्म या टाई, वो बना के देता है. बाकी के जो कपड़े बचते हैं वो फेंक देता है, राइट. तो आपके घर के बाजू में अगर कोई टेलर की शॉप हो तो उसके पास बहुत सारे ऐसे वेस्ट टुकड़े पड़े होंगे, तो 4, 5, 6, 7 टुकड़े उठा के ले आओ और उसको देखो, आप ऑब्ज़र्व करो. देन यू विल सी कि हाउ दिस क्लोथ्स आर मेड. किसी किसी में कम जगह होगी, किसी किसी में ज़्यादा जगह होगी, किसी में मॉडरेट जगह होगी. अंडरस्टूड.
और कोई सिल्क का होगा, कोई कॉटन का होगा, कोई नायलॉन का होगा, तो भी आपको पता चलेगा। आप उसको टच करोगे, स्किन जो होती है ना हमारी, उसके ऊपर घुमाओगे तो पता चल जाएगा कि हाँ ये रफ़ है, ये स्मूथ है, ये सिल्की है। सो फाइबर्स आर ऑफ two types, one is natural, another one is synthetic, right? Natural में भी plant origin and animal origin. Plant origin में fibers आते हैं cotton and silk, नहीं jute and cotton, और animal origin में आएगा silk and wool, right? Now cotton जो होता है, right, plants cotton, टेक सम कॉटन वूल, पुल इट अपार्ट। जब हम उसको ऐसे पुल करते हैं ना तो छोटे छोटे धागे आपको दिखेंगे, देखो एकदम बारीक बारीक, राइट? एंड लुक एट दिस एजेस, व्हाट डू यू ऑब्जर्व? द स्मॉल थिन स्ट्रैंड्स दैट यू सी आर मेड अप ऑफ कॉटन फाइबर्स. Where does this cotton wool come from? It is grown in the fields. जैसे हम लोग कैसे मैंगो बनाना उगाते हैं प्लांट में, ऐसे ही ये कॉटन भी खेत में उगाया जाता है. Cotton plants are usually grown at a place having black soil and warm climate. अभी देखो, जब मैं बात करता हूँ एप्पल की, तो कहाँ के एप्पल जो होते हैं वो फेमस होते हैं? कश्मीर के एप्पल, ओके. चीकू की बात करूं तो वलसाड़ के चीकू फेमस होते हैं, है ना. मैंगो की बात करूं तो केसर फ्रॉम जूनागढ़, वो फेवरेट और फेमस है. तो ऐसा क्या है, वो फेमस क्यों है? क्योंकि जूनागढ़ का सॉइल ऐसा है जहाँ पर जो केसर उगती है उसको वो सारे न्यूट्रिएंट्स अच्छे मिलते हैं. कश्मीर की सॉइल जो है उसमें सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट्स ऐसे हैं कि एप्पल जो होते हैं वो जूसी रेड एकदम, राइट. वलसाड़ में जो सॉइल है वो ऐसा है कि वहाँ पर चीकू बेस्ड उगते हैं. तो हर एक ज़मीन जो होती है उसका न्यूट्रिएंट कंपोजिशन जो होता है वो डिपेंड करता है जो फ्रूट उगेगा वो कैसा उगेगा, राइट. तो कॉटन जब हमें उगाना है तो कॉटन की रिक्वायरमेंट है कि उसको हॉट क्लाइमेट मिलना चाहिए एंड सॉइल जो है वो ब्लैक सॉइल. You must have learned, there is one chapter also, types of soil, black soil, brown soil, sandy soil, rocky soil. ये अलग अलग किस्म के सॉइल आते हैं, राइट. तो हर एक प्लांट हर एक सॉइल में नहीं उगता, सबकी एक स्पेशलिटी होती है, सॉइल की रिक्वायरमेंट होती है. सो कॉटन अगर उगाना है तो टेम्परेचर जो है तुम्हारा नेचुरल वो गर्म होना चाहिए और जो सॉइल है वो ब्लैक सॉइल होना चाहिए, राइट. Now, cotton, the fruits of cotton plant are known as cotton balls and are of the size of lemon. नींबू की साइज़ के उसके balls उगते हैं. After maturing, the balls burst open and seeds covered with the cotton fiber can be seen. See, आपने pomegranate देखा होगा, दाड़म, है ना, तो एकदम पैक होता है. अब वो ज़्यादा फूलेगा, एक टाइम आएगा जब वो क्रैक ओपन हो जाएगा, है ना. तो आप उसके दाने बाहर से देख सकते हो कि अंदर वाइट दाने हैं कि लाल दाने हैं. उसी तरह द बॉल ऑफ कॉटन इज़ ऑल्सो व्हेन इट इज़ राइपन्ड इट बर्स्ट ओपन. जब वो खुल जाएगा तो अब सीड के अंदर लिपटा हुआ कॉटन आपको दिखेगा. देन दिस कॉटन बॉल्स आर प्लग्ड, प्लांट में से निकाल लिया जाता है. फिर उसके सीड जो होते हैं उसको उसमें से अलग किया जाता है कॉटन को, राइट. सीड्स अलग कर दिए जाते हैं. हैव यू एवर सीन अ कॉटन फील्ड दैट इज़ रेडी फॉर पिकिंग? तो जब आप किसी कॉटन फील्ड में जाओगे, राइट, तो आपको ऐसा लगेगा पूरा जो ग्रीन ग्रास जो है उसके ऊपर स्नो गिरा हुआ है, बर्फ़ गिरी हुई है ना, ऐसा लगेगा आपको. फ्रॉम दिस बॉल्स कॉटन इज़ यूजली पिक्ड बाय हैंड. फाइबर्स आर देन सेपरेटेड फ्रॉम द सीड्स बाय कॉम्बिंग. जैसे हम लोग कैसे बाल बनाते हैं, राइट, तो एक लोहे का ऐसा कॉम्ब आता है तो उसमें से सीड्स अलग हो जाते हैं और कॉटन अलग हो जाता है. दैट इज़ नोन एज गिनिंग. दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड गिनिंग.
तो गिनिंग प्रोसेस में क्या होता है, कॉटन बॉल्स को कॉटन निकाल लिया जाता है और उसको कॉम्बिंग किया जाता है और उसके सीड जो होते हैं वो कॉटन बॉल में से अलग कर दिया जाता है. दैट इज़ नॉन एज स्पिनिंग और गिनिंग. It is known as ginning. Ginning was traditionally done by hand and these days machines are used for ginning. तो पुराने ज़माने में तो हाथ से ही किया जाता था, right? Nowadays machines are, every day you see machines are developed for everything, है ना. तो मशीन क्या करता है, तुम्हारा काम इजी कर देता है, फास्ट कर देता है. So this is how cotton is combed from the balls and after making their threads. Jute is another kind of natural fibers. Jute fiber is obtained from the stem of the jute plant. उसका stem होता है ना. किसी के फ्रूट काम आते हैं, किसी के फ्लावर काम आते हैं, किसी की स्टेम काम आते हैं. तो यहाँ पर हमें जूट की स्टेम काम आएगी जूट के थ्रेड्स निकालने के लिए. इट इज़ कल्टिवेटेड ड्यूरिंग द रेनी सीजन, जो अभी चल रही है हमारी रेनी सीजन. इन इंडिया जूट इज़ मेनली ग्रोन इन, कहाँ उगाया जाता है ग्रूट, वेस्ट बंगाल, बिहार एंड असम, वहाँ पर उसकी ज़्यादा खेती होती है. The jute plant is normally harvested when it is at a flowering stage. जब उसके अंदर फ्लावर आने वाले होते हैं ना, तभी उसको हार्वेस्ट मतलब काट लिया जाता है. The stems of the harvested plants are immersed in water for few days. फिर क्या करते हैं, वो स्टेम को थोड़े दिन के लिए पानी में भिगो के रख देते हैं. These stems rot and fibers are separated by hand. तो जैसे ही पानी जाएगा तो उसके स्ट्रैंड्स जो होते हैं वो खुले लूज़ हो जाएंगे. फिर उसमें से जूट के थ्रेड्स निकाल लिए जाते हैं, सेपरेटेड बाय हैंड. नाउ टू मेक द फैब्रिक्स, ऑल दिस फाइबर्स आर फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू यार्न्स. तो जैसे कॉटन का थ्रेड निकला, जूट का थ्रेड निकला, फिर उसको हम स्पिनिंग करेंगे, है ना. वो तो अभी थ्रेड बना है, सिर्फ यार्न बना है, यार्न्स. सो कैसे बनेगा वो स्पिनिंग कॉटन यार्न. आपने देखा होगा कि गांधी बापू हमेशा एक मशीन लेके बैठते थे जो गोल लकड़े की थी, स्टैंड वाली, जिसको हम बोलते हैं चरखा, है ना, जो हमारे पहले नेशनल फ्लैग में था अशोक चक्र की जगह पर. ओके, स्पिनिंग द यार्न, होल्ड सम कॉटन वूल इन वन हैंड, पिंच सम कॉटन बिटवीन द थंब एंड फोर फिंगर of the hand. Now gently start pulling out the cotton while continuously twisting the fibers. Are you able to make the yarn? तो कॉटन को ऐसे खींचो और ट्विस्ट करो, खींचो और ट्विस्ट करो, खींचो और ट्विस्ट करो, तो क्या होगा, धागा जो है वो एक वायर जैसा बन जाएगा. वायर्स देखे हैं ना आपने. The process of making yarn from the fiber is called spinning, है ना. देखो, पहले बॉल था, उसको गिनिंग, कॉम्बिंग किया हमने, उसको बोलते हैं गिनिंग. सीड्स अलग कर दिए उसमें से. फिर जो कॉटन बचा उसको खींचा, ट्विस्ट किया, खींचा, ट्विस्ट किया, तो उसका यार्न बन जाएगा. दिस इज़ नॉन एज स्पिनिंग. इन दिस प्रोसेस फाइबर्स फ्रॉम द मास ऑफ कॉटन वूल आर ड्रॉन आउट एंड ट्विस्टेड. दिस ब्रिंग्स द फाइबर्स टुगेदर टू फॉर्म ए यार्न. अब जो पतंग उड़ाते हो ना, है ना, पतंग उड़ाने का जो रस्सी होता है, राइट, जब आप वो रस्सी, वो आते हैं ना चरखे में कलर और कांच लगा देते हैं, आपको पतंग उड़ाने जैसे बना देते हैं. तो जब वो वाइट कलर की होती है तो देखना उसके कॉर्ड्स जो होते हैं ना एक दूसरे के ऊपर लगे हुए होते हैं, तो उसका नंबर्स भी आता है 5, 8, 10. तो ये क्या होता है 5, 8, 10, जो एक सिंगल थ्रेड है उसके ऊपर 4 और धागे लगे हुए होते हैं. अब झूला झूलने जाते हो तो जो रस्सी होती है ना, उसको आप देखना कैसी होती है ना. तो यू विल सी, वेट 1 minute, इफ आई एम हैविंग, आई कैन शो यू. सी, आर यू एबल टू सी?
देखो एक ऊपर ऐसे गोल गोल टर्न की हुई है, ऐसी रस्सी बन जाती है, जिसमें बहुत ज़्यादा यार्न्स लगा देंगे तो वो रस्सी बन जाएगी। ओके, द सिंपल डिवाइस यूज फॉर स्पिनिंग इज हैंड स्पिंडल ऑल्सो नोन एज टकली, that is shown in figure 3.10 in your textbook. Another hand operated device used for spinning is known as charkha, that you are very well known because Gandhi ji was using it. Use of charkha was popularized by Mahatma Gandhi as a part of the independence movement. अभी गांधी जी ने चरखा इतना फेमस क्यों हो गया? क्योंकि गांधी जी ने एक मूवमेंट चलाई थी इंडिपेंडेंस, है ना, आज़ादी की। तो एट दैट टाइम व्हाट वाज हैपनिंग के क्लोथ्स वेर कमिंग फ्रॉम, इनिशियली ब्रिटिश पीपल केम टू डू द बिजनेस एंड देन दे शो दैट वी कैन रूल दिस पीपल ऑल्सो। तो उन्होंने पहले बिजनेस करने आए थे और धीरे धीरे हमारे ऊपर राज करने लग गए, तो उनको वापस भगाने का काम गांधी जी ने किया था, भगत सिंह ने किया था, राइट। तो गांधी जी ने एक मूवमेंट चलाई थी जिसका नाम था स्वदेशी अपनाओ, राइट। यूज़ द थिंग्स दैट आर मेड इन योर ओन कंट्री बाय योर ओन पीपल। अभी देखो कोई भी फंक्शन आएगा, राखी आएगी, राइट। तो राखी हमारे यहाँ पर, वे तो इंडिया का फेस्टिवल है राखी, लेकिन राखी बन के कहाँ से आती है? चाइना से, है ना। तो हम लोग चाइना की राखी खरीदेंगे, क्यों? क्योंकि थोड़ी सी सस्ती होगी, तो हम लोग वो ख़रीद लेते हैं। और हमारी कंट्री का पैसा कहाँ जाता है? चाइना में, राइट। हर बार हम लोग बाहर की कंट्री का प्रोडक्ट यूज़ करेंगे। जैसे स्पोर्ट्स के जूते खरीदने तो रिबॉक का ख़रीदूँगा, नाइकी का ख़रीदूँगा, क्यों? क्योंकि एक अच्छी ब्रांड होती है, राइट। और वही जूते इंडियन कंपनी के हमको मिलते हैं उसके हाफ प्राइस में, फिर भी हम नहीं खरीदते हैं और ज़्यादा पैसे दे देते हैं कभी कभी हम, और वो सारा पैसा आउट ऑफ इंडिया चला जाता है। और अगर हम इंडियन कंपनीज़ की यूज़ करेंगे, भले थोड़ा महंगा होगा, तो क्या होगा? सारा का सारा पैसा इंडिया में ही रहेगा, तो इंडिया विल प्रॉस्पर, राइट। तो ये एक मूवमेंट थी जो गांधी जी ने चलाई थी। बोल रहे थे कि ब्रिटिशर लोग जो कपड़ा ले आते हैं वो महंगा बेचते हैं, वो मत खरीदो, क्योंकि हम उसको पैसा देते हैं और वो पैसा ले जाते हैं और वही पैसे से हमारे ऊपर राज कर रहे हैं। तो बोला कि स्वदेशी, अभी स्वदेशी हमारे यहाँ तो मिल थी नहीं, कपड़ा तो मिल में बनता है, तो हमारे यहाँ तो मिल थी नहीं। तो गांधी जी ने सिखाया कि मिल की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ चरखे से ही आप यार्न बना सकते हो और फिर यार्न को क्लॉथ में, फैब्रिक में बना सकते हो, तो स्वदेशी बन जाएगा हमारा। जैसे खादी का मूवमेंट था, है ना। तो गांधी जी ने ये मूवमेंट चलाई टू एनकरेज द वेयर क्लोथ्स मेड ऑफ होम स्पन यार्न एंड शन द इम्पोर्टेड क्लोथ मेड इन मिल्स ऑफ ब्रिटेन। स्पिनिंग ऑफ यार्न ऑन ए लार्ज स्केल इज़ डन विद द हेल्प ऑफ ए स्पिनिंग मशीन। तो छोटी मशीन होती है चरखा, उसका बड़ा मशीन भी आता है जो मिल में होता है, सेम प्रोसेस होती है, लेकिन वो बहुत मात्रा में बना देता है। आफ्टर स्पिनिंग यार्न्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग द फैब्रिक्स। तो जैसे स्पिनिंग हो जाएगी तो यार्न्स बनाना शुरू हो जाएगा और फिर फैब्रिक बनाना शुरू हो जाएगा। सो दिस इज़ हाउ सिंथेटिक ऑल्सो और नेचुरल ऑल्सो क्लोथ्स आर मेड। आगे का जो है हमारा यार्न टू फैब्रिक, अभी हमने यार्न बनाना सीखा, अभी यार्न में से फैब्रिक कैसा बनता है वो हम कल देखेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।